سامعین کرام، مسیح خداوند کے مبارک ترین نام میں ایک بار پھر خداوند کا خادم نوید ملک آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے۔ پروگرام خدا کی آواز میں ہم یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کے انٹروڈکشن یعنی تعارف پر بات کر رہے ہیں۔ 2-3 دن سے میں صرف تعارف ہی پر بات کر رہا ہوں اور آج بھی کچھ اسی طرح سے ہی ہے، کیونکہ جب میں اس انجیل کی پہلی آیت کو دیکھتا ہوں تو وہاں پر مجھے واضح طور پر بمطابق یوحنا نظر آتا ہے کیا کہ ابتدا میں کلام تھا۔ اور جب میں اس پہلی آیت ہی کو دیکھتا ہوں کہ ابتدا میں کلام تھا تو فوراً میری توجہ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت کی طرف چلی جاتی ہے، اور وہ بھی پہلا حصہ، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابتدا میں ارض و سما کو بنایا، خلق کیا، اور یہاں مقدس یوحنا بیان کرتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا۔ یوں لگتا ہے کہ یوحنا پیدائش 1:1 کی طرف جاتا ہے اور پھر وہ یوحنا پہلے باب کی 3 اور 4 آیت کی طرف بھی جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر ہم اس حقیقت کو روز روشن کی طرح عیاں دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیا کیا۔ کیونکہ اگر میں اس یوحنا کی انجیل کے پہلے باب اور اس کی 3 اور 4 آیت کو آپ کے سامنے رکھوں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ تو دیکھیے ذرا، پہلے وہ کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا، اور پھر 3-4 میں کہ سب کچھ اس کلام کے وسیلہ سے وجود میں آیا، اور کوئی بھی چیز اس کے بغیر وجود میں نہیں آئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس حقیقت کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بھی واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ مقدس یوحنا پیدائش پہلے باب اور اس کی پہلی آیت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، بنایا۔ اور جب میں مزید تفصیل کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ مقدس یوحنا خداوند یسوع مسیح کی الہی ذات، الوہیت، اس کے خدا ہونے کو پیش کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ علم التثلیث کی بھی بات کرتا ہے۔ دیکھیے، پتہ نہیں کتنی بار آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال چکا ہوں کہ جو لفظ تثلیث ہے وہ تو بائبل میں موجود نہیں ہے، لیکن تثلیث کے تعلق سے جو تعلیم ہے وہ ہمیں ضرور ملتی ہے، کیونکہ جب ہم پیدائش پہلے باب کو دیکھتے ہیں تو ہم نے ابھی بات کی کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں
दूसरी आयत को देखें तो वहां कहता है और खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करता था। खुदा और फिर खुदा का रूह। तीसरी आयत में कहता है और खुदा ने कहा, यानी खुदा ने कलाम किया, तो फिर वो हो गया जो खुदा चाहता था। तो देखिए, तौरात की किताब के बिल्कुल शुरू में ही खुदा की बाबत कि वो खुदाए सालूस है क्लियरली पता चलता है। मसलन खुदा और फिर खुदा का रूह और फिर खुदा का कलाम, यानी खुदा ने कहा, यानी कलाम किया, और उसके कलाम करने के वसीला से हर एक चीज वजूद में आई जो हम यूहन्ना पहले बाब की तीसरी और चौथी आयत में देखते हैं। अब यूहन्ना की इंजील के पहले बाब के बिल्कुल शुरू में वो कहता है कि ये जो कलाम था ना, ये इब्तिदा में था। जमीनों आसमान और जो कुछ इनमें है, इनका जब वजूद भी नहीं था तो उस वक्त से ये कलाम है। और असल में ये कलाम जाते इलाही यानी खुदा से अलग नहीं है। तो मुझे यूं कहना चाहिए कि जमीनों आसमान के वजूद में आने से पेशतर खुदा मौजूद था। कब से है खुदा मुझे नहीं मालूम। बाइबल में कोई ऐसी आयत नहीं जहां पर कोई डेट फिक्स की गई हो कि खुदा कब से है। ना तो खुदा ने ये बातें किताब मुकद्दस में रकम करवाई, ना ही खुदा ने बताई, क्योंकि ये बातें मेरे और आपके जानने के लिए ज्यादा जरूरी नहीं थी। जो बातें हमारे जानने के लिए जरूरी थी, खुदा ने उन बातों को जरूर हम पर जाहिर किया। अब जब मैं इस हकीकत को देखता हूं तो आप भी मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि जब से खुदा है उस वक्त से उसका कलमा उसके साथ है। लेकिन यूहन्ना इब्तिदा में कलाम था क्यों कहता है? क्योंकि यूहन्ना इस इंजील में उस कलाम के मुजस्सम होकर इस दुनिया में आने की बात करता है। कलाम जिसके वसीला से सब कुछ बना, कलाम जो खुदा का कलाम है, गोया खुद खुदा जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आया। क्योंकि जब हम यूहन्ना 1:14 देखते हैं तो वहां पर लिखा है और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। तो हम इस हकीकत को अच्छी तरह से जान लें कि खुदावन के मुकद्दस कलाम में तस्लीस की तालीम क्लियरली मौजूद है। तो यूहन्ना यसू की अलूहियत, यसू के खुदा होने की बात करता है, इसलिए उसने शुरू में यह कहा कि यह कलाम इब्तिदा से है, यानी जब से खुदा का वजूद है उस वक्त से यह कलाम है। और फिर सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, जानिए कि वो खुदा अपने कलमे को जिस्म देता है और उसका कलमा जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आता है मेरे और आपके गुनाहों का दाम
चुकाने के लिए। और उसके बाद जब ये मुजस्सम कलाम जिस मकसद के लिए जिस्म इख्तियार किए था, उस मकसद की तकमील के बाद आसमान पर जाता है, लेकिन जाने से पहले अपने शागिर्दों को यह कहता है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हें एक दूसरा मददगार यानी रूहुल कुद्स भेजूं, जो ना सिर्फ तुम्हारे साथ होगा बल्कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिल में होगा। उसके कहने का मतलब यह था कि मैं तो बड़े आर्जी तौर पर एक खास वक्त के लिए, एक खास मिशन की तकमील के लिए आया था। उसको पूरा करने के बाद अब मैं वापस जा रहा हूं। लेकिन चूंकि मत्ती की इंजील के आखिरी आयत में यीशु ने कहा था, देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, इस वादे की तकमील के लिए अब वो पाक रूह की सूरत में ईमानदारों के साथ और ईमानदारों के दिल में रहना चाहता था। याद कीजिए कि खुदा के मुकद्दस कलाम के मुताबिक हम इस हकीकत को देखते हैं कि खुदा का रूह और खुदा का कलमा पैदाइश की किताब में भी हम देखते हैं, और यूहन्ना की इंजील में तो हम बार बार इस बात को देखते रहेंगे। कलमा को, पाक रूह को और खुद खुदा को, जो एक ही है। रूह भी खुदा का है और खुदा में है, कलमा भी खुदा का है और खुदा में है, जो जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आया। यूं पूरी तस्लीस की तालीम हमें पैदाइश की किताब और उसकी पहली 3 आयात में भी, और फिर उसके बाद हम यूहन्ना की इंजील में भी बार देखते हैं। एक और बात यहां पर मैं कहता चलूं, और वो है बाइबल मुकद्दस की दूसरी किताब, जिसको हम खरूज की किताब कहते हैं। इस खरूज की किताब के 3 बाब में, और खासकर इसकी 13 और 14 आयत में एक बड़े भेद की बात हमें नजर आती है। लिखा है कि तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इस्राएल के पास जाकर उनको कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं? खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो मैं हूं। सो तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने तुम्हारे पास भेजा है। ना सिर्फ इब्तदा वाले अल्फाज जो यूहन्ना में मिलते हैं वो पैदाइश में भी, बल्कि मैं हूं के अल्फाज भी हमें अहद अतीक और अहद जदीद दोनों में मिलते हैं। क्योंकि जब खरूज की किताब में हमने देखा तो खुदा ने कहा, जा और बता कि मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा है। आप जानते हैं कि नए अहदनामा में, और बिलखसूस खरूज की किताब का हवाला देते हुए कि मैं हूं, खुसूसी तौर पर यूहन्ना की इंजील में खुदाबंद यीशु मसीह ने 7 बार मैं हूं के अल्फाज इस्तेमाल किए और अपनी बाबत क्लेम्स किए, दावे किए। आप जानते हैं कि यीशु ने कहा, मैं
अंगूर का हकीकी दरख्त हूं। दूसरे नंबर पर मैं दरवाजा हूं। तीसरे नंबर पर मैं अच्छा चरवाहा हूं। चौथे नंबर पर मैं जिंदगी की रोटी हूं। पांचवें नंबर पर मैं दुनिया का नूर हूं। छठे नंबर पर क़यामत और जिंदगी मैं हूं। सातवें नंबर पर राह, हक और जिंदगी मैं हूं। ये क्लेम्स यस्सु ने किए कि मैं ही हूं, मैं खुदा हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मैंने दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ये मेरे अपने लगाए हुए नंबर हैं। इसकी कोई खास वजह नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं मेरी तरतीब से जो मैंने लिखा है। आप इस तरतीब को बदल भी सकते हैं। अंगूर का दरख्त में हूं, दरवाजा में हूं, चरवाहा में हूं, जिंदगी की रोटी में हूं, दुनिया का नूर में हूं, क़यामत और जिंदगी में हूं, राह, हक और जिंदगी में हूं। ये क्लेम्स, ये वादे, ये दावे किसी और ने नहीं किए, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने ही किए। इन दावों पर यकीन कीजिए और मसीह खुदावंद पर ईमान लाकर और उसकी कुर्बत व नजदीकी को हासिल करते हुए ईमान में मुकद्दसों बढ़ते चले जाएं, ताकि उसका जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से कसरत से जाहिर हो सके। आज मैं यहां पर रुकता हूं और बफजले खुदा कल हम और आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए दुआ भी करते रहिए कि हम यूहन्ना की इंजील से खूब सीख सकें, और यह भी कि जो कुछ सीखें हमारे इल्म में भी इजाफा हो और हम उन बातों को अपनी शख्सी जिंदगी में अमली जामा भी पहना सकें। खुदावंद आपको बरकत दे। सुनते रहिए प्रोग्राम खुदा की आवाज नवीद मलिक के साथ।